بہترین حالت پر ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا اگرچہ آپ لوگوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے لیکن ہمارا جو ہے یہی ہوگا انشاءاللہ 10 پر جو ہے روزانہ ہماری کلاس ہوگی عقیدہ تحریہ کی. تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا فاتباعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. ہم آج جو ہے عقیدہ نمبر 40 جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارے لیے 40 نہیں 39 میری کتاب کے مطابق 39واں عقیدہ جو ہے نہیں 39 تو پڑھ لیا تھا حوض کے بارے میں نا. 40واں عقیدہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. والحوض کتاب نکال لو. دیکھو 39 ہم نے پڑھ لیا تھا. 40واں میری کتاب کے مطابق 8واں نمبر پیج ہے مکتب عمر فاروق کا ہے. عقیدہ نمبر 40 جو ہے ہم آج پڑھ لیں گے. والحوض الذي اکرمه الله تعالی به غیاثا لامته حق. والحوض حق یہ اسی طرح ترجمہ تو اس طرح کیا جاتا ہے. والحوض حق حوض جو ہے وہ حق ہے. الذی وہ حوض اکرمہ اللہ تعالی به جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کیا. غیاثا لامتہ غیاثا لامتہ اپنی امت کی سیرابی کے لیے اپنے امت کی سیرابی کے لیے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کیا ہے. وہ حوض جو ہے وہ برحق ہے. وہ حوض جو ہے وہ کیا ہے برحق ہے. تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے عقائد میں توحید کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد جو ہے رسالت کو ذکر کیا. اب پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ایمان کی ثبوت دی ساتھ ساتھ میں جو ہے رؤیت اہل الجنہ ثابت کیا. اب یہاں سے جو ہے والمعراج حق سے یہاں سے جو ہے اور والحوض الذی اکرمہ یہاں سے یعنی معراج حق یہ 39 عقیدے سے جو ہے یہاں سے معجزات کو ذکر کرتے ہیں. کیا ذکر کرتے ہیں؟ معجزات کو ذکر کرتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل تو وہ تو معجزات ہے. ان میں سے ایک معراج پر جانا شب معراج. دوسرا جو ہے حوض تو اب حوض جو ہے وہ چشمے کو کہا جاتا ہے. حاذ یحوض حوضا اصطلاح لغوی تعریف پہلے کرتے ہیں. حوض جو ہے وہ اصطلاح یعنی چشمے کو کہا جاتا ہے بہنا کیونکہ چشمے میں بھی پانی بہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو حوض کہتے ہیں. یہ جو ہے قرآن میں آیا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہاں پر ہم نے کیا کریا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الکوثر میں بے شک ہم نے انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. اور یہاں پر مطلقاً حوض والحوض الذی. تو اب یہاں پر حوض سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس طرح دیگر حضرات وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ لوگ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے لیے ایک حوض کوثر بنایا ہے جس کا ذکر سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر اس میں جو ہے وہ موجود ہے. پھر اسی کوثر حوض کوثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں موجود ہے اسی سے ایک نہر جاری کر کے میدان حشر میں رکھ دیا ہے. اسی سے میدان حشر میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے. تو یعنی یہ حوض جو ہے والحوض الذی اکرمہ یعنی وہ حوض جو میدان حشر میں میدان محشر میں ہے وہ حوض جو ہے وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر تھا اس کا ایک شاخ ہے.
उसका एक शाख है। तो यहाँ पर वल्हौदुल्लज़ी अकरमहु, यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ से मैदान हशर वाला हाउस जो है वो मुराद है, जन्नत का हौज़ कौसर जो है मुराद नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हौज़ जो है वो बरहक है, हौज़ जो है वो क्या है, बरहक है, ये मोमिनीन के हक में जो है वो ये एक नेमत है। क्या है? एक नेमत है। फिर बाद में दलाल बताती हूँ। जबकि दूसरे बास मुनकिरीन जो है हौज़ से इनकार करते हैं। क्या करते हैं? हौज़ से इनकार करते हैं, लेकिन उसके इनकार का कोई वजह नहीं है, कोई दलील नहीं। तो इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हौज़ जो है वो हक है। और हौज़ के बारे में 30 सहाबा कराम, हौज़ के बारे में 30 सहाबा कराम ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिवायत किया है। मुस्लिम, बुखारी इससे बड़ा पड़ा हुआ है। हौज़ के बाब पर जो है इस पर अलग अलग बाब बांधे गए हैं, इससे जो है मौजिज़ात पर, तो उसमें ये जो है बड़ा पड़ा है। तो हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़ मैदान हशर में जो है, यानी मेरा हौज़ जो है वो ईला के मकाम से लेकर सनआ जो है यमन में एक जगह का नाम है, वहां तक इतनी मुसाफत के बराबर होगी। क्या होगी? इतनी मुसाफत पर होगी। जबकि दूसरे हदीस और ये कहते हैं कि उस पर जो कप्स होते हैं, यानी जो ग्लासेस होते हैं, वो आसमानों में सितारों की तादाद के बराबर होंगे, वो आसमानों में सितारों की तादाद के बराबर होंगे। जबकि दूसरी आयत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझ पर एक इनाम किया है, वो ये कि हौज़ कौसर मुझे दिया है, और ये एक बहुत बड़ी क्या है, खैर है। लिहाजा मैं जो है अपने हौज़ पर खड़ा हूँगा और आप लोगों के लिए पेश रू होगा। क्या होगा? पेश रू। क्या मतलब? जिस तरह जो है ये क्या होता है, जिहाद के लश्कर के लिए लश्कर वाले जो है अपने से आगे कोई एक शख्स भेज देता है, वो पेशरू होता है। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत के लिए पेशरू होगा क़यामत के दिन मैदान हशर में। इसके हौज़ की जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से औसाफ भी बयान हुई है। हदीस में आता है कि ये एक बहुत बड़ा हौज़ है, जिसका रंग जो है वो दूध के रंग की तरह सफ़ेद है, जिसका मीठापन जो है वो शहद की मीठेपन की तरह जो है वो मीठा है, और इसी तरह जो है उस क्या होता है, और ये बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। क्या होगा? बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा, और जो भी एक मतलब ये पीगे उसको दोबारा प्यास नहीं होगी। क्योंकि जब लोग जो है, जब वो नफ़ख़े सानिया के बाद जब लोग अपने कब्रों से उठते होंगे, तो उस वक्त जो है ये लोग बहुत ज्यादा प्यासे होंगे। क्या होंगे? बहुत ज्यादा जो है वो प्यासे होंगे। तो उसकी वजह से जो है वो सब जो है वो मैदान हशर की तरफ भाग रहे होंगे। तो उस वक्त जब क्या प्यासे होंगे, जब हौज़ कौसर का एक मतलब पानी पी लेंगे, तो फिर उसमें जो है वो क्या एक मतलब जब पी लेंगे तो फिर दोबारा उसको प्यास नहीं लेंगे। लेकिन ये हौज़ जो है ये अपने उम्मत के लिए जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सराबी के लिए तो है, हक है, लेकिन इससे भी कुछ लोग जो है वो महरूम होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़ कौसर पर जो है वो खड़ा हुआ होऊंगा, हौज़ कौसर पर मैं अपने उम्मत को जो है पानी पिला रहूंगा। कुछ लोग जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं उसको पानी पिलाने का इरादा करूंगी, फरिश्ते आकर उसको मुझसे दूर करेंगे। तो मैं उसको कहूँ कि उम्मती, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। तो फरिश्ते कहेंगे कि रसूल आपको नहीं पता कि इन लोगों ने आपके चले जाने के बाद क्या क्या बिदआत की है, क्या क्या बिदआत की है। तो इसी वजह से जो है ये बिदअती लोगों को जो है ये नसीब जो है वो नहीं होगा। क्या होगा? ये मुर्तदीन। तो बाज़ फुक़हा कराम फुक़हा नहीं, मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि मुनाफिकीन को, मुर्तदीन को, और इसी तरह बिदाती लोगों को, इन 3 किस्म के रोहों को जो है वो पानी नहीं पिलाया जाएगा, पानी नहीं पिलाया। अल्लाह ताला हमें और आपको भी नसीब फरमा ले। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है साक़ी कौसर। क्या? साक़ी
कोसर यानी कोसर से पिलाने वाले, तो कोसर तो जन्नत का है ना, तो जन्नत से जो एक नहर आता है तो उसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएगा, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, साकी कोसर कहते हैं। अकीदा नंबर 41 की तरफ जाते हैं। ये मुख्तसर सी क्या थी कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर का जो है वो इस बात किया है। क्या क्या इस बात किया, जो लोग जो है इनकार करते हैं हौज़ कौसर से, हौज़ से, तो जो है वो बिला वजह जो है वो इनकार करते हैं। वश्शफ़ाअतुल्लती इद्दख़र लहुम हक़्क़ुन कमा रुया फिल अख़बार। वश्शफ़ाअतु हक़्क़ुन, इस तरह है, अश्शफ़ाअतु हक़्क़ुन अल्लती इद्दख़र लहुम, कि शफाअत भी हक है, यानी वो शफाअत जिसको क्या कर लिया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए ज़ख़ीरा कर रखा है, अपने उम्मत के लिए ज़ख़ीरा कर रखा है। कमा रुविया फिल अख़बार, जिस तरह जो है रिवायतों में क्या है वारिद हुआ है, जैसे रिवायतों में मज़कूर है, ये वही शफाअत जो है वो क्या है, हक है। सबसे पहले जो है शफाअत कहते हैं मिलाना, शुफा से है ना, मिलाना, यानी एक ही शफात जो है, एक ही शफात की वजह से दूसरे को कोई ओहदा मिल जाता है, कोई क्या मिल जाता है, कोई माफी मिले, कुछ भी व्हाटएवर जो भी हो, तो उसको कहते हैं शफात। अब यहाँ पर शफात से मुराद क़यामत की शफात, यानी क़यामत के दिन जो है सुलहा, अंबिया, उलमाए कराम, ये जो है उम्मत के आवाम के हक में जो है वो शफात करेगा या नहीं करेगा, इसमें इख्तिलाफ है। मुअतज़िला का कहना ये है कि शफात नहीं करेंगे, वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि शफात है, वो कहते हैं कि अहले कबार यानी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब वालों के लिए जो है शफात नहीं है। और उनका दलील ये है, कुरान में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, कुरान में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला तुक़बलु मिनहा शफ़ाअह। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, कि कोई भी नफ्स दूसरे नफ्स को कुछ भी काम नहीं आएगा, वला तुक़बलु मिनहा शफ़ाअत, और उसकी ना उसकी शफाअत काबिल कबूल होगी। तो इससे देखो, इस आयत से वाकई सराहतन मालूम होता है कि शफाअत बरहक, शफाअत का एतबार नहीं है अहले कबायर के हक में। जबकि दूसरे में आते हैं कुरान में मालिज़ ज़ालिमीना मिन हमीम वला शफ़ीअन युत्वा, कि इन जालिमों का कोई भी दोस्त नहीं होगा और ना कोई शफीअ होगा जिसकी शफाअत को कबूल किया जाए। तो इन दो दलाइलों के बिना पर वो कहते हैं कि अहले कबायर के लिए जो है, सिर्फ वो अहले कबायर के, वो कहते हैं कि अहले कबायर के यानी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वालों के लिए जो है शफाअत जो है वो नहीं है, शफाअत जो है वो नहीं है। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अहले कबायर के लिए शफाअत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफाअत करेगा, सुलहा भी शफाअत करेंगे, शुहदा भी शफाअत करेंगे, उलमाए कराम भी शफाअत करेंगे। हमारी दलील जो है बहुत सारे कुरान की आयतें हैं। कुरान में आता है, कुरान में क्या आता है कि सूरह नबा की आयत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यानी वो आयत किस तरह है, इल्ला लिमन नहीं, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान वक़ाल सवाबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ला यतकल्लमून, कोई भी सिफारिश नहीं करेगा, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला शफाअत का हुक्म दे दे। तो देखो यहाँ पर ला यतकल्लमून, तकल्लुम से मुराद शफाअत है, यानी कोई भी शफाअत नहीं करेगा मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश दे, तो फिर जो है वो क्या होगा, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। देखो क्या है, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, यहाँ पर इज़्न जो है जो वो दे दिया गया ना, तो अंबिया, सुलहा, उलमाए कराम, शुहदाए कराम को क्या कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा इजाजत, तो फिर जो है वो शफाअत करेंगे, शफाअत करेंगे। इसी तरह जो है कुरान में आता है,
कुरान में किस तरह आता है, फमा तनफहु क्या, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, बख्शिश तलब कर अपने गुनाहों के लिए भी, अपने मोमिनीन के लिए और मोमिनात के लिए भी। देखो ये बख्शिश तलब करना यानी अल्लाह तबारक तआला की हाँ में क्या करना, सिफारिश करना, ये साबित है कि नहीं साबित है। इस तरह हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती li अहली कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत जो है वो मेरी उम्मत के गुनाह कबीरा के इर्तिकाब वालों के पास, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वालों के लिए होगा। शफाअती li अहली कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत में से शफाअत जो है वो अहली कबाइर के लिए होगा। इसी तरह जो है एक और हदीस में आता है कि अबू तालिब साहिब हजरत अबू तालिब, ये तो मुसलमान नहीं होता ना, और लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत क्या था, जगर दोस्त था, जिगर दोस्त था, बहुत करीब का दोस्त था। उनका चचा भी था, परवरिश भी किया था। जिस साल जो है नबूवत के 5-6 साल में इनकी ये वफात हो गया था, तो उसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि ये गम का साल है कि उनमें 2 दोस्त, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा और एक हजरत अबू तालिब, ये दोनों जो है वफात हो गए थे। ये अगर से जो है ये जहन्नम से नहीं निकलेगा, क्योंकि कुरान में आता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, कि अल्लाह तबारक तआला माफ नहीं करेगा जो शख्स उसके साथ शरीक ठहराए, तो ये तो माफ नहीं होगा। लेकिन चूंकि इसके बदन को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पूरे बदन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ है, और जिस बदन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ तो फिर उसको आग नहीं होता, उसको आग नहीं लेकर, तो उसकी तखफीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है की वजह से जो है, उसकी शफात की वजह से उसके हक में जो है वो थोड़ा अजाब तखफीफ करेगा। और तखफीफ किस तरह होगा कि उसके पाँव जो है वो क्या होंगे, उसके पाँव में जो है आग के जूते होंगे, आग के, चूंकि उनके जाहिर के बदन को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन ने टच किया है, तो इस वजह से वो तो नहीं छू सकते, तो अंदर तो नहीं छुआ है ना, तो अंदर उसकी आग जो क्या करेंगे, जूते बना लेंगे, तो वो जूते जो है उसके अंदर के अंदर जो है वो उबल कर जो है उसके दिमाग जो है उस आग की वजह से खोल जाएंगे। तो और ये कहते हैं कि ये सबसे कम आज़ाब है, अल अमान वल हबीब, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अच्छा, तो इसमें जो है यानी ये भी साबित है, इस हदीस से भी साबित है कि अज़ाब की तखफीफ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शफाअत करेगा। दूसरा ये है कि अक्ली दलील किस तरह है, कुरान में आता है वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसके लिए जो है वो क्या करे, बगैर यानी वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन, जिसके लिए चाहे अल्लाह तबारक तआला उनको माफ कर दे, तो जब वो क्या थे बगैर सिफारिश के एक इंसान को माफ कर सकता है, तो आया सिफारिश के साथ तो बदरजे उला माफ करेगा ना, बदरजे उला जो है वो माफ करेगा, तो इस वजह से जो है शफाअत जो है वो बरहक है। कुरान से भी मैंने दलाइल सारे बता दिए, हक है। दूसरी बात ये बात जान लो कि शफाअत की तकरीबन जो है 8 किस्में है। क्या है? 8 किस्में है। इनमें से पहले को कहते हैं शफाअती ऊला, इसको शफाअत कुबरा भी कहते हैं, शफाअत उज़्मा भी कहते हैं। ये वो शफाअत होती है जिसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेगा, यानी उम्मत जो है पूरे लोग सब लोग जो है वो परेशान होंगे, यानी मैदान हश्र में जो इतने ज्यादा परेशान कि हम जहन्नम में जाए जन्नत में जाए, लेकिन हम जो है वो क्या हो जाए, हमारे साथ हिसाब और किताब शुरू हो जाए, हमारे साथ तो हिसाब और किताब शुरू हो जाए। तो हिसाब और किताब के लिए जो है लोग जो है वो क्या करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम इनकार करेगा कि मैंने जो है शजर मामनू को छका था, तो इस वजह से मैं जो है आज अल्लाह तबारक तआला का बहुत गज़ब है, अल्लाह तबारक तआला जो है वो अपने गुस्से में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने गुस्से में है, तो इस वजह से मैं जो है सिफारिश नहीं कर सकता। फिर दोबारा जो है वो क्या करेगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जो है अपने कौम के लिए बद्दुआ की थी, तो वो भी इनकार करेगा कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, बद्दुआ करना तो ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं भी सिफारिश नहीं कर सकता। फिर जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा कि आप तो कलीमुल्लाह है,
कलीमुल्लाह, लिहाजा हमारे लिए शफात करे। तो वो भी इनकार करेगा कि मैंने जो है एक क़िब्ती को मारा था, मुक्का मारकर उसको मैंने मारा था, तो इस वजह से मैं सिफारिश नहीं कर सकता। फिर आगे जो है क्या करेगा, फिर आगे जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा कि आप तो रूहुल्लाह है, लिहाजा हमारी सिफारिश करे कि कम से कम हिसाब किताब तो शुरू हो जाए। तो फिर वो भी ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार करेगा। आखिर में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मकामे हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावती ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअसहु मक़ामम महमूदा। हम ये दुआ मांगते हैं ना अज़ान के बाद। तो मक़ाम महमूदा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक़ाम महमूद पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की हमद और सना बयान करेगा। फिर वो सजदे में रखेगा। तो सब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रअसा, ए मोहम्मद अपना सर उठा ले, इश्फा तुशफ़ा, यानी इश्फा तू सिफारिश करे, तुशफ़ा आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिसाब किताब शुरू करने की सिफारिश करेगा, तो सिफारिश जो है वो उनकी कबूल किया जाएगी, फिर हिसाब किताब जो है वो शुरू होगा। तो ये सबसे पहले शफाअत जो है ये पूरे आम काफिर मुसलमान हर इंसान के हक में जो है ये सिफारिश अल्लाह तबारक तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सिफारिश करेगा। फिर दूसरे नंबर पर जो है दूसरा सिफारिश जो है वो किसके लिए करेगा, अहले कबायर के लिए। जिन लोगों ने जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया उनके लिए भी सिफारिश करेगा। जैसे हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी सिफारिश जो है वो क्या करने, अहले कबाइर यानी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब वालों के लिए है। तो फिर ये सिफारिश होगी। फिर जो है उन लोगों के लिए सिफारिश करेगा जन्नत में दाखिल, मोमिनों को जन्नत में दाखिल होने के लिए जो है वो क्या करेगा, सिफारिश करे। और ये भी हदीस है, अन्ना अव्वल शफीअन फिल जन्नह। और फिर उसके बाद जो है जिन लोगों की नेकी और आराफ वाले हैं ना, आराफ ये एक ऐसा कौम है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक टीला है, उस पर खड़े होंगे। ये वो लोग होंगे जिसकी नेकी और बुराई बराबर होंगे। तो फिर उसके लिए जो है आराफ, अहले आराफ के लिए जो है वो क्या करेगा, सिफारिश करेगा। तो फिर वो क्या होगी, उसकी भी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर जो है जन्नत में जिन लोगों जो दाखिल तो हो गए, लेकिन दरजात की बुलंदी के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिफारिश करेगा। फिर आखिर में जो है वो क्या, आखिर में जो है वो अजाब की तखफीफ के लिए, यानी जो लोग जो है वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अपने चचा अबू तालिब के लिए सिफारिश करेगा। तो उसकी सिफारिश जो है वो काबिल कबूल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक तारुज़ होता है। तारुज़ ये होता है, कुरान में तो आता है, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, बस कुफ़ारों को, जहन्नमी लोगों को सिफारिश करने वाले की सिफारिश नफ़ा नहीं देंगे। हालांकि यहाँ पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिफारिश करेगा। तो इसका ये है कि यहाँ पर जो आयत में आया है वो खुरूज मिनन नार है, यानी ये कि कुफ़ार जो है वो शफाअत की वजह से जो है वो जहन्नम से बाहर नहीं निकल सकते, जहन्नम से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, अलबत्ता जहन्नम में थोड़ी बहुत जो है तखफीफ हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है अबू तालिब के लिए होगा। तो इसी तरह जो है इस अकीदे को लाकर जो है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह मुअतज़िला पर रद्द करना चाहते हैं। मुअतज़िला कहते हैं कि अहले कबाइर के लिए जो है वो क्या कोई भी शफाअत नहीं है। हमने बहुत सारे दलाइल के साथ जो है वो पेश की, खासकर शफाअत इला अहलिल कबाइर मिन उम्मती, ये कितनी बहुत सराहतन दलील है। तो इन तमाम दलाइलों से मालूम हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिफारिश करेंगे। यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि दूसरे रिवायतों में आता है कि शुहदा भी वो करेगा, क्या कहते हैं, शुहदा भी सिफारिश करेगी, उलमा भी करेगी। और यहाँ पर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश साबित है। तो हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और इस तरह जो है, यानी ये शफाअती कुबरा जो है ना, इसमें जो है उलमा का भी जिक्र है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आम लोग जो है वो
سفارش کرے گا علماء کو، پھر علماء جو ہے آگے سفارش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اس میں جو ہے کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی جس شفاعت کو کس چیز کے لیے منسوب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور شفاعت کبریٰ کی نسبت جس علماء اور صلحاء کی طرف منسوب کیا وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ کیا کرے گا، علماء کو سفارش کرے گی حساب کتاب کی، پھر علماء جو ہے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے مقام محمود میں جو ہے ثنا وغیرہ بیان کرے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گی. یہ دو کافی ہے. انشاءاللہ العزیز آگے تھوڑا سا المہند علی المفند پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ باقی تھا.